Good evening, I'm Rahul Shivshankar and you're watching a very special broadcast of Nation at 9 on a day when the Election Commission has announced the date of polls here in the Union capital. Joining us this evening is Arvind Kejriwal, the former Chief Minister of Delhi, also the convener of the Aam Aadmi Party, and some would say the lead contender this time around for the crown of the capital city of India. Mr. Kejriwal, thank you for joining us here on NewsX and giving us your first interview and your valuable time on a day when I know that you must have many pressing concerns given the fact that the poll dates have been announced, the battle has been drawn. I just want to ask you, what are your opening thoughts really on this poll date? A lot of controversy has been generated about whether the government was delaying the polls. You know, you have moved court at certain times. There's been a lot of talk about all of this. Your first thoughts on the poll dates? You see, for the last 6-7 months, the BJP was trying to avoid the polls all through. BJP की पूरी स्ट्रैटेजी पिछले 6-7 महीने से ये थी कि किसी तरह से खरीद के थोड़े आम आदमी पार्टी के तोड़ लो, थोड़े कांग्रेस के तोड़ लो और किसी तरह से सरकार बना लो. They made 4 such attempts, clear attempts, and we were able to sting them in one of those attempts, and we were able to capture that, and we actually did a press conference on that. तो जब उनके सारे एफर्ट्स फेल हो गए, फाइनली दे हैड टू डिसॉल्व द असेंबली ऑन 4th November, and now they had to go to the polls. So we are prepared for the polls. In fact, Aam Aadmi Party for the last few months has been campaigning very aggressively in Delhi, and now everyone in Delhi says कि अब तो हवा पलट गई है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है. जहाँ भी जा रहे हैं, आपने भी पोल किए थे, आपके पोल में नेक टू नेक आ रहा है. Neck to neck. It was थोड़ा पुराना है. आज की स्टेट में आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी काफी अच्छे मार्जिन से जीत रही है. So you're saying that it changes on a day-to-day basis in your favor? Yeah. It's actually Aam Aadmi Party is continuously improving its graph. I'll ask you about the Aam Aadmi Party poll. I believe that you have also conducted a poll. I'll ask you a little bit about that. I believe you're going to be putting out the details tomorrow in a press conference. But while the Aam Aadmi Party has turned this election really into a referendum on Mr. Modi's 8-month government, the pressure some people are saying is greater on you. You have more at stake in this election, Mr. Kejriwal. This is your definitive struggle. They say it's a make or break election. It is also an election which will be a test of your relevance and perhaps your endurance and stamina. Is that true? मैं अगर राजनीति में अपने लिए आया होता, मुझे पैसे का लालच होता, मुझे सत्ता का लालच होता, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था. इनकम टैक्स में कई ईमानदार लोग हैं, कुछ भ्रष्ट लोग भी हैं. अगर मुझे भ्रष्टाचार ही करना होता, मैं वहाँ पे कितने पैसे कमा सकता था. मैं मुख्यमंत्री बन गया. अगर सत्ता का लालच होता, कुर्सी छोड़ने की क्या जरूरत थी, इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी. सत्ता और पैसे के लिए तो नहीं आए हम लोग. तो मेरा क्या स्टेक पे लगा हुआ है? मेरा कुछ भी स्टेक पे नहीं है. हम तो देश के लिए आए. Aadmi Party's way in this election, and I know that you're going to say no, they are going my way, but if they don't, if you know, no one can say for sure what happens. If they don't go your way, whose failure will it be? Will it be the failure of the people and their judgment? No, but I want to ask you this question. मैं यही कह रहा हूँ, हम अभी सोच भी नहीं रहे और सोच भी नहीं सकते, because I think it's a completely hypothetical question. Of the people and their judgment? No, but I want to ask you this question. मैं यही कह रहा हूँ, हम अभी सोच भी नहीं रहे और सोच भी नहीं सकते, because I think it's a completely hypothetical question. But as you said, suppose it happens. So 11th February को चुनाव के बाद बैठ के बात करेंगे. अभी तो बहुत टाइम सोचेंगे. But philosophically, if you don't get elected as chief minister, politics जो है वो ground reality पे चलती है, philosophy पे नहीं चलती है. Whose responsibility will it be? That is exactly what I said. कि आप चुनाव के नतीजे आ जाएं, 99.9999% हम लोग जीत रहे हैं, 0.0001% अगर मान लीजिए कुछ होता है, तो 11 फरवरी को एक और इंटरव्यू करेंगे आपके साथ. But you won't blame the people. You will blame Arvind Kejriwal, or you'll blame the Aam Aadmi Party and its mission, its statement. है ना, फिर अभी क्या होता है? Who has to be blamed? How can I tell right now? Okay, fair enough. I'll take that. The AAP has turned this into a presidential face-off almost. You positioned yourself against Mr. Jagdish Mukhi in some of the campaigns that you put up, posters that you put up. हमारे पास 4 इनके वहाँ से फोन आए थे. उनके अंदर अब बीजेपी के अंदर भी कंपटीशन हो रहा है.
उनके यहाँ से 4 बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आए थे दिल्ली के कि वो जगदीश मुखी की वजह वगैरह मेरा नाम डाल दीजिए आप किनके फ़ोन थे? Who called you? मैं नाम नहीं बता सकता, आई मीन यू कैन मेक योर ओन गेसेस। वो मतलब अब होड़ मची हुई है उनके अंदर। अभी मनोज तिवारी ने भी तो वहाँ पे रामलीला मैदान में जोर से बोला था केजरीवाल मेरा नाम क्यों नहीं डालता होगा, मेरी फोटो क्यों नहीं लगाता वहाँ पे। तो मतलब वो उनके अंदर भी होड़ मची हुई है कि सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी किसको प्रोजेक्ट करेगी, बीजेपी का सीएम कैंडिडेट। But many people say that, especially those within the Bharatiya Janata Party, that you've deliberately underplayed this face-off between yourself and Mr. Modi, because the BJP has made it quite clear that whatever the reasons might be, that their face for this election, they will be fighting this election in Mr. Modi's name. Why have you strategically and obviously tactically avoided a direct face-off with Mr. Modi? It is not strategic. Obviously, Mr. Modi is not resigning from Prime Ministership and becoming the Chief Minister. It is understood. ये तो और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले अपना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था। तब चिल्ला रही थी बीजेपी, कांग्रेस इज विदाउट अ कैप्टन, अपना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करो, अपना पीएम। अब आप अपना सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर करते? नाउ कैन वी से दैट बीजेपी, दिल्ली बीजेपी इज विदाउट अ कैप्टन, इट इज अ सिंकिंग शिप विदाउट अ कैप्टन। दे डोंट इवन हैव अ फेस। क्यों नहीं कर रहे वो डिक्लेयर? वो इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज उनके पास फेस नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है दिखाने के लिए कि दिल्ली में अगर मान लीजिए कल बीजेपी जीत जाती है तो कौन बीजेपी को लीड करेगा? कोई चेहरा नहीं है उनके पास। सतीश उपाध्याय कौन करेगा? विजय गोयल जी, जगदीश मुखी जी, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। आज आपके सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री में मुझे सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। सो पीपल वांट टू सी अरविंद केजरीवाल एज द चीफ मिनिस्टर। वो अगर वहां पे दूसरे का वो दिखाएंगे, इमीडिएटली पोल में आएगा उनको 5% वोट मिल रहे हैं और हम लोगों को 65% 70% वोट मिल रहे हैं, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। पर ये तो धोखा है ना देश के साथ। आप प्रधानमंत्री के चेहरे उसको चीफ मिनिस्टर के साथ क्यों, आई मीन यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की लड़ाई अलग बात है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की लड़ाई हो जाए। आज मैं आपके चैनल में सबके सामने बोल रहा हूँ, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ म्यूजिक थ्रोज दिस चैलेंज टू बोथ द पार्टीज एंड सेज कि भाई आप अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट लाओ, आप अपना चीफ मिनिस्टर म्यूजिक के उसमें जंतर मंतर पे म्यूजिक डिबेट करें, हम आएंगे। Well, I'll look forward to that because that is something that I was also going to raise with you after our interview. But nonetheless, I just want to come back to the point. The BJP says that, look, in all these state assembly elections that have taken place after the general election, they projected Mr. Modi. Mr. Modi was their face. He campaigned left, right and center. The people believed in him. And then, in all his wisdom, he picked a responsible chief minister to lead the states. And that's what they're going to do. So there are two parts of your question. First is, Mr. Modi was the face of the elections, I agree. But to say that they won the elections only because of that, that I think is wrong. In these states, there was no alternative. For instance, in Haryana, I think there was 10 or 15 years of anti-incumbency. In Maharashtra, there was 10 or 15 years of anti. People were fed up of Congress. जैसे सेंट्रल लोकसभा इलेक्शंस में लोगों ने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे ही महाराष्ट्र और हरियाणा में भी लोगों ने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। पीपल वांटेड टू गेट रिड ऑफ कांग्रेस। सो बीजेपी जीत गई, बीजेपी को जीतना ही था। अब उन्होंने जिसको चीफ मिनिस्टर, आप जाके पूछो खट्टर साहब एक दिन कहते हैं लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, खट्टर साहब एक दिन कहते हैं लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं यूज करना चाहिए, अब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। इस किस्म की अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि पीपल आर गोइंग टू वेलकम दैट। I just want to be direct once again. You are not scared of Mr. Modi. You are not uncomfortable when people draw comparisons between yourself and Mr. Modi. For the record. But why should I be scared of anyone? Why should I be scared of anyone? It doesn't make you uncomfortable because he comes in with a very strong record of governance according to the Bharatiya Janata Party. He's won on that record of governance and development. अच्छा चलिए उसी मैं पहली चीज तो again you're comparing apples and oranges. He is the Prime Minister of the country and he has the entire country to govern. बहुत अच्छी बात है,
वो देश से भ्रष्टाचार दूर करे ना, दिल्ली से हम भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं। वो देश को ठीक करें ना, देश में शिक्षा ठीक करें, स्वास्थ्य ठीक करें, सड़कें ठीक करें, बिजली ठीक करें, पानी ठीक करें। लोगों ने अब उनको वोट दे दिया, वो प्रधानमंत्री बन गए, अच्छी बात है। दिल्ली में हम करेंगे, हमने करके दिखाया था, 49 दिन में हमने करके दिखाया था। सो लोगों को दिल्ली में हमारे ऊपर भरोसा है। तो कंफ्लिक्ट पोजीशन क्या कहाँ है? देयर इज नो कंफ्लिक्ट। ही इज द प्राइम मिनिस्टर, वी आर फाइटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप। देयर इज नो कंफ्लिक्ट एक्चुअली। Let me conflict is artificially being projected. Okay, let me come back to something that I was raising in the course of a few debates just before yesterday. When this question was made by your spokespeople, the same response was given by your spokespeople. Many people in the Bharatiya Janata Party said, and they pointed out to a statement, they said that it's a chief ministerial election and Modi should decide whether he wants to stay PM or become a chief minister. That's what you have reportedly said. But after quitting as the chief minister of Delhi, Mr. Kejriwal, you decided to also fight for the prime ministership of this country. Now, people will look at that and say that you were equally confused, if nothing else. How do you respond to that? एक चीज बताओ, how do you say that I was fighting for the prime ministership of the country? अगर मैं पहली चीज तो दो, ये अफवाह फैलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा। गुड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। पहली चीज तो ये कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी प्रधानमंत्री बनने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती है। मोदी जी ने तो नहीं छोड़ी, और जितने प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं किसी ने नहीं छोड़ी। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का वाराणसी में चुनाव लड़ने से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। दिस इज बीइंग आर्टिफिशियली प्रोजेक्टेड। दूसरी चीज, मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस वाले अंदर काम नहीं करने दे रहे थे। मेरा अपना असेसमेंट था कि बाहर हमारी बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी है, हमने रिजाइन कर दिया। वी वांटेड अ कंप्लीट मेजोरिटी। हमने सोचा था आज रिजाइन कर रहे हैं, कल दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के साथ। जनता इस बार हमारे काम से बहुत खुश है, हमें पूर्ण मेजोरिटी देगी, तो फिर 5 साल हम बिना कांग्रेस के काम करेंगे। इसका सबसे बड़ा एविडेंस दैट आई मीन इट व्हेन आई एम सेइंग इट कि 3 मार्च जब इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया दिल्ली में, हमने 3 मार्च को तुरंत जाके PIL फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, डिमांडिंग दैट दिल्ली असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड, एंड आवर कैबिनेट आल्सो एक्चुअली रिकमेंडेड दैट दिल्ली असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड। इन लोगों ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में केस 10 महीने चलता रहा, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, एंड लोकसभा में एंटर किए। दूसरी चीज, मान लीजिए थ्योरेटिकली आई हैड सपोज प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस, तो प्राइम मिनिस्टर तो तभी बनूंगा ना जब जीत के जाऊंगा अंदर, या बिना जीते लोकसभा में। अगर मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना होता, मैं अपने लिए सेफ सीट नहीं ढूंढता, मैं दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ता, ऐसी सीट से चुनाव नहीं लड़ता जहां पे मेरे जीतने के चांसेस थे। मैं क्यों जाके वाराणसी में चुनाव लड़ता? वाराणसी में जब चुनाव लड़ने गया था, राइट फ्रॉम द बिगनिंग द चांसेस ऑफ माई विनिंग वर कंप्लीटली रिमोट इफ नॉट नेग्लिजिबल। तो मैं क्यों गया? तो ये प्रधानमंत्री बनने गया, ये कहना बिल्कुल गलत है। दिस इज कंप्लीट। Well, that's important because there are many who are saying that you are only contesting Delhi's elections because you could not win the PMship, and therefore Delhi is not a priority, it's just a stepping stone for Arvind Kejriwal. So this you're saying is wrong. This is completely wrong. I have already said that Delhi is my first priority. I said it that अगर आपको याद हो राहुल, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना 3 या 4 जनवरी को मैंने स्टेटमेंट दिया था कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। So I was completely against fighting लोकसभा elections. It was party decision. पार्टी ने डिसाइड किया था, पार्टी के अंदर there was an overwhelming majority which said that we should go for लोकसभा elections. So there were a lot of people within the party. Would you name some of these people? That's not right. Tell me, would you have personally, had it been left to you totally, stayed out of the Lok Sabha campaign? I would have stayed out of Lok Sabha elections. So it was not your decision? It was not, party decided. आप अपने रिकॉर्ड्स निकाल के देख लीजिए, 3 या 4 जनवरी के आसपास मैंने बोला था। आफ्टर दैट वी हैड अ नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, और उस नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में it was decided that we will fight Lok Sabha elections. Okay, so you are making it very clear that you are not, no, that you have not picked, मैंने ये कई बार बोला है that you have not picked India over Delhi at any stage in your life, and therefore this is not a fallback option for you, this job. 2 चीजें हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज तो ये कि दिल्ली के लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, आई रियली एम, आई ओ देम अ लॉट
and my commitment is to Delhi for the next many years, not just 5 years, for many years. Number one. Number two is कि एक स्टेट को मॉडल बना के दिखाना चाहते हैं हम, मॉडल ऑफ गवर्नेंस कि कैसा, जैसे 49 दिन है, हमने दिखा दिया रिश्वतखोरी बंद हो सकती है। पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था कि करप्शन बंद हो सकती है क्या, इंडियंस आर बॉर्न करप्ट, हमारे तो खून में करप्शन है। 49 दिन में हमने दिखा दिया करप्शन बंद हो सकती है। तो हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स दिल्ली के अंदर करना चाहते हैं, कई सारी चीजें। हम दिल्ली में सरकारी स्कूलों को इतना मॉडल बना देंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट है। हम दिल्ली में सरकारी अस्पतालों को इतना अच्छा बनाएंगे। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने एक बहुत इलेबोरेट प्लान बनाया एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, दैट हाउ कैन वी मेक दिल्ली इनटू अ वेरी सेफ सिटी फॉर वुमेन। सो वी वांट टू मेक दिल्ली इनटू अ मॉडल सिटी। उसके बाद बाकी देश के लोग अपने आप करेंगे। But Mr. Modi also says that he wants to make Delhi and several other cities which are leading national cities in this country into smart cities, into leading cities. So how's your vision different? It comes down to implementation. वो बॉम्बे को करके देखे ना, वो बेंगलुरु को कर लें, चेन्नई को कर लें, कल पूरा देश उनके पास है। दिल्ली हम कर रहे हैं ना, तो कंपटीशन भी तो होना चाहिए थोड़ा सा। वो उधर करके देखे, हम इधर करते हैं। Okay, I'm glad we've come back to the comparison question. Mr. Modi says that he's a man of action, he's a man of delivery, governance, while you are a man of agitation. That's what he said in his Ramlila ground rally, that people should do what they're good at doing. In this respect, he says that you don't have much to show as an administrator. You had a chance, but you exited. These are his exact words. उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो अच्छे नहीं थे, मुझे लगता है। उन्होंने जिस तरह से मेरे खिलाफ अपशब्द बोले कि मैं केवल धरना करता हूँ, मैं नक्सली हूँ, मुझे जंगल चले जाना चाहिए। आप दिल्ली के लोगों से पूछ के देखो, मैं नक्सली हूँ क्या? क्या दिल्ली के लोग चाहते हैं कि मैं जंगल चला जाऊँ? मुझे लगता है ऐसे शब्द यूज़ करना ठीक नहीं है। राजनीति के अंदर भी एक मर्यादा होती है, और मेरे को कई बार मीडिया ने प्रोवोक किया, व्हाट डू यू हैव टू से। मैंने कहा मैं इस तरह की भाषा यूज़ नहीं करूँगा। मुद्दों पे बात करते हैं। 49 दिन में हम लोगों ने महंगाई कम की, हम लोगों ने बिजली के दाम आधे किए। आज दिल्ली में इवन मिडिल क्लास, आपके लेवल के भी पत्रकार कई लोग बोलते हैं जी 2 लाख का 2.5 लाख का हमारा बिजली का बिल आ रहा है। मिडिल क्लास भी बिजली के बिलों से दुखी है। हम ही कम कर सकते हैं और कोई नहीं कम कर सकता। 7 महीने में ये लोग तो नहीं कम कर पाए, दे फेल्ड, बीजेपी फेल्ड। हमने कम करके दिखा दिए थे, 2 दिन के अंदर कर दिए थे। हमने पानी घर घर पे पहुंचाना, पानी की चोरी दिल्ली के अंदर बंद कर दी थी, घर घर पानी पहुंचने लग गया था। हमने पानी के बिल कम कर दिए थे लोगों के। हम लोगों ने महंगाई कम कर दी थी। मेरे टाइम में 8 रुपए किलो गोभी बिकती थी, आज 60 रुपए किलो, 8 रुपए से 60 रुपए किलो, 60 रुपीज पर केजी गोभी बिक रही है। गाजर मेरे टाइम में 10 रुपए किलो बिका करती थी, आज 40 रुपए किलो गाजर बिक रही है। भिंडी हमारे टाइम में 12 रुपए किलो बिकती थी, आज 20 रुपए या 25 रुपए भिंडी बिक रही है। तो महंगाई हमने कम करके दिखाई। सीएनजी के रेट हम लोगों ने कम किए। रिश्वतखोरी दिल्ली में बंद कर दी थी बिल्कुल। 49 दिन में ये कम थोड़ी होता है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया 7 महीने के अंदर, खुद ही अभी जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, उनका जो अचीवमेंट था, उनका क्या अचीवमेंट था कि उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, 19.5 लाख बैंक। देयर इज नथिंग एल्स टू शो। 7 महीने में अचीवमेंट के नाम पे खाली बैंक अकाउंट खुलवाए हैं गरीब लोगों के 19.5 लाख बैंक। तो एक मिनट, तो गवर्नेंस करनी किसको आती है? हमको करनी आती है कि बीजेपी को गवर्नेंस करनी आती है? जो पार्टी 5 दिन के अंदर बिजली कंपनियों को ऑडिट का ऑर्डर दे दे, तो एक मिनट, तो गवर्नेंस करनी किसको आती है? हमको करनी आती है कि बीजेपी को गवर्नेंस करनी आती है? जो पार्टी 5 दिन के अंदर बिजली कंपनियों को ऑडिट का ऑर्डर दे दे, जो पार्टी बिजली के बिल कम कर दे, जो पार्टी महंगाई कम कर दे, जो पार्टी रिश्वतखोरी बंद कर दे, जो 65 साल में बीजेपी कांग्रेस नहीं कर पाए, उस पार्टी को गवर्नेंस नहीं करनी आती। लेकिन जो पार्टी 7 महीने में कुछ ना कर पाए, उसको गवर्नेंस करनी आती है। Mr. Kejriwal, the point is that the BJP constantly says, and others who are also your rivals like the Congress, they remind you that, look, yes, in 49 days you ruled Delhi, it was an agitationist style of politics, and if the people really thought you'd done a good job, then in the Lok Sabha elections perhaps, in some of the assembly constituencies, if you really look at it, you would have done well. You would have won perhaps more seats in the Lok Sabha election, like you won in Punjab, 4 seats. उसका रीजन ये था बिकॉज पीपल डिड नॉट सी अस एज अ नेशनल ऑल्टरनेटिव।
लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, हम लोगों को जनता ने ये नहीं देखा कि नेशनल लेवल पे हम लोग कोई कंपेरिजन, हम कोई ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं. Yet in neighboring Punjab, you did so well. Punjab was really a surprise. It was a pleasant surprise. So they saw you as an alternative there, but not in Delhi. I think they were fed up of the other parties. They were so fed up of the other parties that they opted for Aam Aadmi Party. Okay. People across the country respect Aam Aadmi Party, but Lok Sabha ke andar, no one saw us as a political alternative. I'll go into the question of record a little later. After the Lok Sabha debacle, you came out and said that, look, we had overreached a little bit, extended our capacities. Secondly, you said that you didn't have organizational muscle. Thirdly, you said there was a negative role of money power in that particular election. Therefore, you couldn't compete. Do you still believe that, or do you think that people weren't prepared for your individual brand of, I would use the word, confrontationalist style of politics? Do you think that was the reason? No, I don't think so. I don't think so. जो आप confrontation की बात कर रहे हैं, एक ही चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो मैंने धरना दिया था. That's all. जो मैंने धरना दिया था उसी की बात कर रहे हैं. There were many examples. This is Mr. Somnath Bharti who went and conducted raids. There were, your other ministers, Mr. Sisodia who went and conducted raids, went on raids. एक एक करके करते हैं. आज आप एक काम करो, न्यूज़ एक्स के ऊपर आज आप एक ओपिनियन पोल कराओ. Manish Sisodia as an education minister did surprise checks on some government schools. तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर को अपने एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के काम करना चाहिए कि उसको ऐसे सरप्राइज चेक्स करने चाहिए? आप जनता से पूछ लो. किस किस्म की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं आप? नंबर 1. नंबर 2, सोमनाथ भारती का पूरी रात जो एपिसोड हुआ था, मैं आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग दे दूंगा. There were 4 TV channels present there with Somnath Bharti the entire night. पूरी रात को 4 TV चैनल्स ने रिकॉर्डिंग की है, लेकिन उन चारों टीवी चैनल्स ने उसको छुपा लिया. उन्हीं से मैंने पूरी रात की रिकॉर्डिंग ली थी. इवन वी गॉट बायस्ड. जब टीवी चैनल्स ने दिखाना चालू किया सोमनाथ भारती को, हम भी बायस हो गए थे. हमने सोचा शायद सोमनाथ भारती ने गलत किया है. हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठी एंड वी हैड ऑलमोस्ट मेड अप अ माइंड दैट हम सोमनाथ भारती को एक्सपेल कर देंगे. जब हमने सारी वीडियो देखी, सोमनाथ भारती वहां खड़े होके पुलिस वालों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उस बिल्डिंग के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है, ड्रग रैकेट चल रहा है, बगल में गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी के अंदर ड्रग्स के पैकेट्स पड़े हुए हैं, वो सारा वीडियो के अंदर है. ही नेवर एंटर्ड, ही नेवर रेडेड एनीवन. उसने कोई रेड नहीं मारी. वहां पे आप देखिए पूरी की पूरी वीडियो हमने यूट्यूब पे डाली हुई है. तो ये जो सोमनाथ भारती रेडेड, सोमनाथ भारती रेडेड, सोमनाथ भारती रेड, ही नेवर कंडक्टेड एनी रेड. तो क्या मिनिस्टर, अगर उसके पास लोग आते हैं और उसके एरिया के अंदर ड्रग रैकेट चल रहा है, वो अपनी रजाई के अंदर सोता रहे या उसको एक मिनट उसको जाना चाहिए? उसको जाना चाहिए. मुझे लगता है उसको जाना चाहिए. आई थिंक वी शुड अपलॉड हिम. उसके लिए हमें ताली बजानी चाहिए जो सोमनाथ भारती ने उस रात को किया. नंबर 1, मैंने धरना दिया. आप लोग कह रहे हो एजिटेशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एजिटेशन. आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने भी धरना दिया था? पता है आपको? 2006 में 3 दिन के लिए, मैंने तो 2 ही दिन दिया था, उन्होंने तो 3 दिन का धरना दिया था. एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने धरना दिया था. एक मिनट, उन्होंने धरना दिया था और उन्होंने नर्मदा डैम की हाइट बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल इशू के लिए, मैंने वुमेन सेफ्टी के लिए धरना दिया था. फर्क इतना था, मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में सड़क के ऊपर सोया था. बट मिस्टर केजरीवाल, वो एयर कंडीशनड टेंट के अंदर धरना दिया. एक मिनट, आपने क्वेश्चन पूछा है तो जवाब तो देने दीजिए. करुणानिधि, उन्होंने धरना दिया था एज ए चीफ मिनिस्टर. जयललिता, उन्होंने धरना दिया था एज ए चीफ मिनिस्टर. नीतीश कुमार, उन्होंने धरना दिया था एज ए चीफ मिनिस्टर. मैं आपको कम से कम 15 एग्जांपल्स दे दूंगा चीफ मिनिस्टर्स के. केजरीवाल धरना दे तो डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर. बाकी सारे धरना दे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रेंथेंड. आई थिंक द बायस ऑफ द मीडिया, आई थिंक, हैज टू बी. Okay. Well, you yourself have said that, look, if people are calling this an anarchist style of leadership, then I am an anarchist. Mr. Modi amplified that statement at the Ramlila grounds. Has this portrayal, at some level, do you believe it has become an Achilles heel for you, Mr. Kejriwal? आपको नहीं लगता कि जो पूरी स्पीच थी प्रधानमंत्री जी की, उसमें
अगर वो प्रधानमंत्री जी ये कहते कि दिल्ली के लिए उनका ये एजेंडा है, दिल्ली के ऐसे करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं जैसा भी हूँ, मैं मफलर पहनता हूँ, सैंडल पहनता हूँ, कपड़े अच्छे नहीं पहनता, मैं भद्दा हूँ देखने में, एनार्किस्ट हूँ, भगौड़ा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे दिल्ली तो नहीं सुधरने वाली। केजरीवाल चोर नहीं है। केजरीवाल की नीयत साफ है। केजरीवाल जनता के बीच में रहता है। केजरीवाल जनता के लिए, केजरीवाल का दिल धड़कता है। देश के लिए केजरीवाल का दिल धड़कता है। तो मैं एनार्किस्ट हूं, मैं ये हूं, मैं वो, इससे देश थोड़ी सुधरने वाला। लेट्स टॉक ऑफ इश्यूज, मुद्दों की बात करते हैं। महंगाई कैसे कम होगी, चलिए आइए डिबेट करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं। आज न्यूज एक्स के चैनल पे चलिए जगदीश उपाध्याय मुखी जी को बुला लीजिए, जगदीश मुखी जी के साथ डिबेट करते हैं आज। Okay. Mr. Kejriwal, I'm sure that it is for the BJP to decide who they pick As the CM candidate. As the CM candidate, I'm sure that's a decision they might take. और उनको करना चाहिए। वो क्यों भाग रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों भाग रहे हैं? Well, let me come back to the original question. This is a question. You put the question out from NewsX platform. You put the question out. We'll follow that question up with the BJP. Has Kejriwal become less confrontationalist now? I know that you don't like this word, but I'm asking you this because you have not held conspicuously any dharnas after the time when you were chief minister. पिछले साल हमने कितने धरने किए थे? गुड क्वेश्चन आपने जो पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले साल हमारी सरकार बनने के पहले, इन द लास्ट 1 year, हमने कितने धरने किए थे? याद है आपको? There were quite a few agitations. एक धरना किया था। You went outside the Prime Minister's house. I remember that very clearly. And the metros had to be shut down because you held, you wanted to expose somebody. But मैं year by year आ जाता हूँ। Let's go year by year. पिछले साल हमारी पार्टी बनने के बाद हमने एक धरना किया था, जब मैं सुंदर नगरी में बिजली के बिलों के लिए 15 दिन अनशन पे बैठा था। एक धरना किया था। उसके पहले वाले साल में 3 धरने किए थे पूरे साल में। एक बारी अन्ना जी के साथ एक दिन के लिए 25 मार्च को हम लोग 15 मंत्रियों के लिए बैठे थे। फिर अगस्त के महीने में 10 दिन के लिए हम लोगों ने अनशन किया था और एक दिन की कोयला क्रांति की थी 25 अगस्त को। बस 3 धरने किए थे एक साल में। पिछले साल एक ही धरना किया था पूरे साल में, और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक एक धरना किया। आपको नहीं लगता जबरदस्ती है? और इसके कंपैरिजन में आप बीजेपी के देख लो कितने धरने हुए, कांग्रेस के देख लो कितने धरने हुए। कांग्रेस ने, आप मई, जून और जुलाई उठा के देख लो, कम से कम 20 धरने किए हैं कांग्रेस ने बिजली के मुद्दे पे लेके। लेट मी आस्क, तो फिर कांग्रेस फिर कांग्रेस धरना पार्टी क्यों नहीं है? फिर बीजेपी धरना पार्टी क्यों नहीं है? Because the people, somehow it is stuck. Somehow it is stuck. किसने as far as the किसने stick किया? Immaterial. मीडिया ने। Immaterial. You can't hang the media for मीडिया ने this. It is perhaps a more effective campaign that was run by the others. इसीलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं let me bring this back. कि सच्चाई दिखाओ लोगों को। Okay, Mr. Kejriwal, one second. Mr. Kejriwal, will you say today that Kejriwal, as Chief Minister of Delhi, if he were to become the Chief Minister on the 10th of February, will not lead dharnas to Central Secretary? I'm just asking you. Why not? You won't. क्यों नहीं करना चाहिए आप बताओ? अगर मुद्दे उठे जनता के लिए, मैं तो जनता के मुद्दों के लिए कुछ भी करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के 4 बाउंड्रीज के बीच में रह के। मैं आपको बताऊं राहुल, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग सेंसिटिवली डील कीजिए। आप लोग जिस किस्म का डिस्कोर्स इस देश के अंदर शुरू कर रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। आपने धरने को इतना गंदा प्रोजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि इस देश का जनतंत्र इस देश के गली और मोहल्लों से चलता है, संसद से नहीं चलता है। गली और मोहल्लों के अंदर अगर धरने बंद हो गए, लोगों का एजिटेशन बंद हो गया, लोगों ने एक्सप्रेशन करना बंद कर दिया, ये देश बैठ जाएगा। तो आप इसको बुरा मत, हाँ, इट शुड बी पीसफुल, एजिटेशन शुड बी पीसफुल। मैंने कभी तलवार नहीं चलाई, मैंने चाकू छुरी नहीं चलाई, मैंने कभी किसी को पीटा नहीं। पीसफुल एजिटेशंस को अगर आप लोगों ने इस तरह से, अन्ना हजारे ने क्या किया था? आप लोगों ने 24 घंटे क्यों दिखाया अन्ना हजारे को? सारा देश उतर के आया था रामलीला मैदान के दौरान, क्यों? इसका मतलब अन्ना हजारे ने सबसे बड़ा गुनाह किया? अन्ना हजारे तो पता नहीं 20 साल, एक मिनट पूरा कर, अन्ना हजारे 20-25 साल से धरने कर रहे हैं, एंड हिज एजिटेशंस हैव बीन वेरी, गरीबों के लिए, अन्याय के खिलाफ धरना करना गलत बात नहीं है। धरने को इतना गलत मत प्रोजेक्ट कर दीजिए आप लोग।
It is a part of my fundamental right under Article 19(1)(a). And you will exercise it. You will exercise it in letter and spirit. If needed, अगर जरूरत पड़ी, अन्याय हुआ जो मेरे मुख्यमंत्री के दायरे में नहीं आता, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। आप लोगों ने जब मैंने धरना किया था एज ए चीफ मिनिस्टर, सारे टीवी चैनल्स मेरे खिलाफ बोल रहे थे, सारे मुझे गालियां दे रहे थे टीवी चैनल वाले, और उन्हीं टीवी चैनल्स ने जब ओपिनियन पोल कराया, उस ओपिनियन we mustn't confuse the TV channels with the people who appeared on those TV channels. I don't think any, well, at least NewsX did not take a principled or unprincipled stand. As an individual, I great respect when I am talking. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को याद है उस टाइम जब मैं धरने पे बैठा हुआ था एज अ चीफ मिनिस्टर, ओपिनियन पोल कराए गए, ओपिनियन पोल में मोर देन 80% पीपल वर सेइंग वी आर विद केजरीवाल, केजरीवाल ठीक कर रहा है। धरने पे बैठा हुआ ढेरों औरतें आई मेरे पास जिस दिन मैं उठा रात को सो के, अगले दिन जब मैं सड़क पे सोया था, लाइन लगी हुई थी औरतों की, जिनके टप टप आंसू बह रहे थे। लाइन लगी हुई थी औरतों की, टप टप आंसू बह रहे थे कि अरविंद जी आप पहले व्यक्ति हो जिसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। Fair enough. I'll ask you then, if Arvind Kejriwal becomes chief minister tomorrow and he feels that the question of statehood hasn't been addressed by the government at the center, will you go on dharna? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी किसी मुद्दे पे, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें समय लगता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इमीडिएट है। महिला सुरक्षा ऐसी चीज है, लोकपाल बिल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। करप्शन इज इमीडिएट। ये क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हो? इस मुद्दे पे धरना करोगे, इस मुद्दे पे धरना करोगे? No, I'm asking you specifically because people in the back of their mind. उसके बाद देख लेंगे। Okay. So there is no express commitment, but let me ask you, sir. सीधी बात है। You were very aggressive on the question of corruption. मैं सीधी बात है। जिस किस्म से आप लोगों ने पीसफुल एजिटेशंस को कंप्लीटली ब्लैक कर दिया है ना, ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। जिस तरह से धरना एक रेडियो स्टेशन है जो धरना कुमार चलाता है। No, but that's an unfair assessment of the media. The media covers plenty of agitations as long as they're peaceful. जो गलत आप लोग भी, जैसे हम कुछ गलती करते हैं माफी मांग लेते हैं, आप लोग भी कुछ गलती करो तो मान लिया करो कि ये गलत है। Let me bring you back. आप बताओ धरना करना गलत है? Let me bring you back. आप बताओ धरना करना गलत है? I agree. पीसफुल एजिटेशन करना गलत है? You have to pick your battles. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है सर। As a chief minister, as a leader of a political party, there are certain causes which might. सर मेरा तन मन धन इस देश के लिए न्यौछावर है। कल को मुझे देश के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना हुआ, गरीबों के लिए लड़ना हुआ, जनता के लिए लड़ना हुआ, भ्रष्टाचार के लिए खिलाफ लड़ना हुआ, मेरा तन मन धन सब कुछ न्यौछावर है। जो करना पड़ेगा। It is for the people to decide. Fair enough, Mr. Kejriwal. For the people to decide whether that is a route that they desire to see a chief minister of a state taking or not, that's a separate issue. But I just want to ask you, because you see, you were very, very aggressive about corruption. You remain very aggressive about corruption. You listen to your publicity materials, your advertisements, they focus hard. The billboardings, hoardings and billboards that you have put up all focus on corruption. Yet Arvind Kejriwal has been remarkably inert as compared to even Anna Hazare, who's written letters to the Prime Minister on the Lokpal agitation. We've had 2 sessions of Parliament. Yet Arvind Kejriwal suddenly has been missing from this discourse. Why? ये गलत है। जितने मुद्दे हमारे पुराने थे वो सारे मुद्दे हैं। इट इज जस्ट कि इस बार जिस सीरीज में हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं, इट इज गाइडेड बाय डेली डायलॉग। हमने डेली डायलॉग शुरू किया। जैसे डेली डायलॉग में एजुकेशन एंड हेल्थ का जब हो गया, उसके बाद हमने एजुकेशन एंड हेल्थ के मुद्दे उठाने शुरू किए। जब गांव का हो गया, उसके बाद हमने गांव के मुद्दे, जब ये 2 मुद्दे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, स्वराज एंड लोकपाल। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट डेली डायलॉग। I think it will be around 20th January or something. इसमें ये दोनों मुद्दे आएंगे. You will see that. But for the last 7-8 months, we haven't seen Mr. Kejriwal hit the road. We haven't seen the Aam Aadmi Party, though you've had 4 legislators in Parliament. I am not taking a position. I am speaking only for the people and what people say. Mr. Kejriwal hit the road. We haven't seen the Aam Aadmi Party, though you've had 4 legislators in Parliament. I am not taking a position. I am speaking only for the people and what people say. The channel takes no position, Mr. Kejriwal, on whether your agitation hits the streets or not. Please, we have to make that distinction for the record. I'm just asking you a simple question. You had 4 members of Parliament. None of them have actively raised the issue of corruption or even the Lokpal bill in Parliament. No bills have been moved, no motions have been sought, etc. I'm asking you. So let me just explain.
जो काम पार्लियामेंट में करने का होता है वो पार्लियामेंट में करते हैं। पार्लियामेंट में अभी लोकपाल बिल तो पास हो गया ना, इट इज नॉट पेंडिंग इन पार्लियामेंट, सो दिस इशू डज नॉट नीड टू कम इन पार्लियामेंट, इट हैज टू, पर लोकपाल अपॉइंट नहीं हो रहा, दैट इज द इशू, दैट्स द पॉइंट। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत है, हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की हुई है। Okay, let's come back to this issue. Mr. Manish Sisodia gave an interview a few days ago. The Lokpal bill on which you pulled down one government, your own government, did not figure in the narrative at all. I'm only asking because this is what people are saying. People are saying that... Let me clear put all the doubts at rest. Lokpal bill is extremely important for us. Let me explain. हमने जो 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद की थी, वो रिश्वतखोरी बंद इसलिए हुई थी क्योंकि हमारी सरकार थी, ईमानदार सरकार थी। हम जैसे ही गए रिश्वतखोरी फिर से आ गई, सिस्टमिक चेंज नहीं हो पाया। सिस्टमिक चेंज वो होता है कि हम रहें ना रहें, हमारे बाद भी रिश्वत। लोकपाल बिल इज दैट सिस्टमिक चेंज। तो हम आएंगे, सबसे पहले डे 1 से ही दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर देंगे, लेकिन जिस दिन लोकपाल बिल पास होगा हमारा, उस दिन वो सिस्टमिक चेंज आएगा कि कल को केजरीवाल रहे ना रहे, दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी नहीं रहेगी। सो लोकपाल बिल ऑब्वियसली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। Let me ask you a question. What are the 5 things that Kejriwal promises he will do that the government hasn't done? करप्शन को दूर करेंगे, दैट इंक्लूड्स लोकपाल बिल ऑल्सो, एंड दैट इंक्लूड्स रिमूविंग द ब्राइबरी विच इज फेस्ड बाय अ कॉमन मैन ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो नंबर 1 इज करप्शन। नंबर 2 इज महंगाई। महंगाई में आपके बिजली के बिल आधे करेंगे, महंगाई में आपका पानी फिर से हम फ्री करेंगे दिल्ली के अंदर। महंगाई और बिजली में मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, पिछली साल हमने 400 यूनिट तक के लोगों का बिजली का बिल, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे को तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उनको क्लियर कर दूं, हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर किया था, जिसको बीजेपी ने परस्यू नहीं किया, उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। हम आएंगे, उसको परस्यू करेंगे। बिजली कंपनियों का ऑडिट जब बाहर निकल के आएगा तो सारे दिल्ली के लोगों का, अमीरों का भी, गरीबों का भी, सबका बिजली का बिल कम होगा। सो हम महंगाई कम करेंगे। तीसरी चीज शिक्षा। शिक्षा के अंदर हमने बोला है कि सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा करेंगे कि 5 साल के अंदर the education in government schools will be much better than even the private schools, and I'm very confident that within 5 years बड़े लोग भी, मंत्री भी, ब्यूरोक्रेट्स भी अपने बच्चों को वॉलंटरली स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने में गर्व महसूस करेंगे। तो और अपर कॉलेज लेवल के ऊपर 20 नए कॉलेजेस खोलेंगे। आज 95% मार्क्स के बाद भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, तो हम 20 नए कॉलेजेस खोलेंगे। तो शिक्षा, हेल्थ के अंदर सरकारी हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब है। हमने बहुत इलेबोरेट प्लान बनाया है कि हर म्यूनिसिपल वार्ड के अंदर 3 या 4 प्राइमरी हॉस्पिटल्स होंगे, प्राइमरी सेंटर्स होंगे, सो दैट अगर आपको खांसी है, जुखाम है, आपको बुखार है, तो आप एम्स नहीं जाइए। डोंट क्लटर क्लॉग एम्स विद टू मेनी पेशेंट्स, डोंट गो टू सुपर। तो प्राइमरी हॉस्पिटल्स एट द लेवल ऑफ असेंबली हम लोग सेकेंडरी हॉस्पिटल्स बनाएंगे और फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। एंड we will grant autonomy to the hospitals, put the right kind of people in the administration so that they are better governed. And the most important thing is women safety. Women safety के ऊपर भी हमने बहुत, पूरे दिल्ली में CCTV कैमरा लगाएंगे so that each and every inch of the public space can be monitored, और हर लड़की को उसके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक बटन देंगे so that if she is in any difficult position, situation, she can actually press that button and the message will go to 3 or 4 of police and they can reach in time. I am told that you have conducted some internal surveys of the electoral landscape. How many seats are you giving the Aam Aadmi Party? Abhi I can't disclose that because Yogendra ji has to do the final but thing. I'm here to extract a scoop from you, Mr. Kejriwal. So you must give me a ballpark figure. I'll tell you what, मेरे पास raw figures है जो मैं नहीं बता सकता, because फिर finally जो आता है ना वो योगेंद्र जी देखते हैं। Is it a majority? हाँ, it's a majority. It's a majority. Is it a comfortable majority? It's a comfortable majority. Would you say it's equivalent to what the BJP did and performed if you projected the Lok Sabha results on the assembly chart? उतना मेरे को नहीं पता, but it's a comfortable majority. So you will be forming the government. आम आदमी पार्टी should form the government. Roughly, what is the vote share that you're giving yourself? I don't know. कल बता देंगे वो, योगेंद्र यादव जी बता देंगे. Okay, let me ask you, however, once
it is my responsibility to ask you this question because it was a matter of huge debate in the last assembly elections. You took a very principled stand. If you fell short, you said, if we don't get majority, we will sit in opposition. What will Arvind Kejriwal do this time? In case you fall short, and don't say this time that, look, my surveys are saying that I'm getting a majority, so I'm not going to answer your question. I'm going to ask you this because it's a very important question. It's a hypothetical In Jammu and Kashmir, the mandate, many people are saying, has been wasted. In Delhi, this was the case. दिल्ली में We don't want the people of full this... majority आ रही है. दिल्ली में एक काम करते हैं, अच्छा, forget all the service. आप अब बाहर निकलोगे ना, जो पहले 10 लोग आपको सड़क पे मिले, उनसे पूछना कि किसको वोट दे रहे हो. 10 में से 7 लोग आपको कहेंगे झाड़ू पे मोहर लगा रहे. Well, we did an internal, we did a survey. बराबर बराबर आए थे. It was neck to neck. And the BJP hadn't begun campaigning. टीवी चैनल वाले 10 दिन पीछे चलते हैं. Okay, Mr. Kejriwal, but I have to ask you because this is what the people of Delhi want to know. They don't want to end up in another logjam. अच्छा, आपका भी सर्वे यही कह रहा था ना कि कांग्रेस को सीट नहीं मिल रही. आपका सर्वे मैंने देखा था. Yes. We were neck to neck. 43, 42 ऐसी कुछ था. Yes, 42.3 and 42.9. हाँ. Yes. तो 43 मान लेते हैं टोटल. 86% ये हो गया, 4-5% एक्स्ट्राज मान ले जाएंगे, अदर्स ले जाएंगे, तो भी कांग्रेस के 10% से भी कम आ रहा है. 10% से कम में एक भी सीट नहीं मिलती है. You will also be the first person to tell us that the TV gets their surveys wrong and journalists get their surveys wrong. मैं तो ये कह रहा हूँ, मान लेते हैं आपका सर्वे ठीक है. मैं तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. मान लीजिए आपका सर्वे ठीक है, तो 43 दोनों के आ गए, 86 हो गया. 86%. As a matter of principle, Mr. Kejriwal, let's talk in a matter of principle. As a matter of principle, forget what the surveys say. Forget for a moment what your own survey is projecting. Forget what you कह रहा हूँ कि we are not in your heart of hearts. I'm asking you. I'm telling you, it's a hypothetical question. ऐसा हो ही नहीं रहा है. कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है. But there was hypothetical questions being asked of the Aam Aadmi Party even before the last assembly election. But you took a very principled stand. You told the people of Delhi. पिछली बार सिचुएशन ये थी कि लोग हमें ये देख रहे, यार इनकी 2 सीट आएंगी, 4 सीट आएंगी. तो इट वाज अ 3 कॉर्नर्ड कंटेस्ट था पिछली बार. इस बार बाइपोलर कंटेस्ट है. बाइपोलर कंटेस्ट में या तो वो जीतते या हम जीतते. अगर by some dint of fate, happenstance. नहीं हो रहा. So you're not going to take a position on this. Why is the Aam Aadmi Party reluctant to take a position Why on should this? I? कल को आप 10 hypothetical question मेरे पास टाइम थोड़ी है. It's a matter of principle. Why should I answer hypothetical? Because many people will say. Okay, but Mr. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे से 10 hypothetical question पूछोगे, practical question पूछते हैं ना. Okay, because many people will say that. मैं आपको सीट्स बता दूंगा. Then there was no reason to pull down the 49-day experiment. There was no reason. If in any case there was going to be inbuilt instability in the system, which might happen. इस बार नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि हमने इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं था. इस बार पूर्ण बहुमत आ रहा है. जनता कह रही है जी इस बार आपको पूरा चांस देंगे, पक्का चांस देंगे. So there is no question of a coalition government as far as Mr. Kejriwal is concerned. आप बड़े स्मार्ट हो. No, I'm asking you. I'm not. It's a hypothetical. Coalition government is a hypothetical question. It's not happening. Okay. Talking about differences and talking about principles, you said that BJP is an opportunistic party, that they were trying to take our legislators, they were trying to cobble together a winning combination. Not opportunists, they are a corrupt party. Okay, but your party has done the same. You have taken on board 6 members of the Bharatiya Janata Party. हमने किसी के एमएलए को नहीं तोड़ा है. A corrupt party. हाँ, मैं 2 चीजें. पार्टीज करप्ट हैं, उनके अंदर कुछ लोग ईमानदार भी हैं. पिछली बार हमने 12 या 13 ऐसे लोगों को टिकट दिए थे, या ज्यादा थे शायद, जो दूसरी पार्टी से आए थे. जब दूसरी पार्टी से लोगों को लेते हैं, हम उसकी डबल जांच कराते हैं. 3 चीजों के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. क्राइम, कैरेक्टर, करप्शन. अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, बिल्कुल नहीं टिकट देंगे. अगर उसका कैरेक्टर खराब है, बिल्कुल नहीं टिकट देंगे. अगर उसने क्राइम, कोई क्रिमिनल केसेस हैं, बिल्कुल नहीं टिकट देंगे. ये सारी चेकिंग करने के बाद हम टिकट दे रहे हैं. So clean contenders from other parties are welcome. A large number of your own internal party men disagree with this. There was some dissonance about taking in people. They said, isn't there enough talent within the Aam Aadmi Party? ये पार्टी कोई क्लोज्ड क्लब नहीं है कुछ लोगों का. Isn't there enough talent within आम आदमी पार्टी? मतलब क्या, ये आम आदमी पार्टी है, अब ये म्यूचुअल बेनिफिट क्लब हो गया.
भाई अपने अपने लोगों को ही टिकट बांटेंगे, ऐसा नहीं है देश बचाने के लिए आए हैं। Some people who 120 करोड़ लोगों को साथ लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब 120 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के घूमेंगे, वो सपना है हम लोगों का। Some people who left your party said it's a closed club, that there are very few people who take some decisions. मुझे बोलना नहीं चाहिए कौन किस लिए छोड़ के गया पार्टी, किस लिए नहीं छोड़ के गया। कई बार जब टिकट नहीं मिलती है, टिकट कट जाती है, तो फिर उनको अचानक प्रिंसिपल्स याद आते हैं। You had started a process of taking surveys before you gave tickets. आपको काफी कुछ पता है हमारी पार्टी के बारे में। I was just asking you this question very specifically. इस बार हम लोगों ने कई सर्वे कराए हैं कि पहली स्टेज तो हो गई, कोई भी जब हम कंसिडर करते हैं ये 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि इन 3 चीजों के ऊपर कौन कौन एलिजिबल हो रहा है। फिर मान लीजिए 3-4 कैंडिडेट हो गए हु आर क्वालिफाइंग दीज 3 थिंग्स, उन 3-4 लोगों का फिर हमें ये देखना इनमें जीत कौन सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनिंग। तो वो फिर हम कई तरह से पता करते हैं। वी ट्राई टू टॉक टू द लोकल जर्नलिस्ट, वी गेट अ सर्वे, इंडिपेंडेंट सर्वे डन। हम इस बार हमने ये नया शुरू किया। इस बार हमने But the same journalists you don't trust. कौन सा? You said that journalists have done you a disservice, but you consult those journalists. हाँ, कंसल्ट करते Okay. हैं। Let me ask you, Mr. Kejriwal, why not have that system of conducting referendums as you were at the local level before picking your candidates? Have you abandoned that? कौन सा रेफरेंडम? वॉलंटियर्स? Yes. वो इस बार भी है। वॉलंटियर मीटिंग्स हुई हैं इस बार, हर विधानसभा में वॉलंटियर मीटिंग हुई है। और इस बार हमने क्या किया, पिछली बार वॉलंटियर्स के बीच में वोटिंग हो रही थी। आई यू गेटिंग? मान लीजिए 70 वॉलंटियर्स बैठे हैं, 4 नाम। पिछली बार क्या था, वी वर ओपन, थोड़ा सा सिस्टम Many people call that loosely the primary system. मैं आपको बता देता हूँ ना पिछली बार से क्या चेंज किया। पिछली बार क्या था, हम ओपन एप्लीकेशंस मंगाते थे। मान लीजिए 20 एप्लीकेशन आई, देयर वाज अ स्क्रीनिंग कमेटी, वो 20 में से 4 लोगों को स्क्रीन करती थी ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया। वो 4 लोगों के ऑप्शंस हम वॉलंटियर्स को देते थे, उस पर वोटिंग कराते थे। उसमें हो क्या रहा था कि बहुत ज़्यादा लॉबिंग हो रही थी, पार्टी 4 टुकड़ों में बट जाती थी, उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता था पार्टी को। बाद में आफ्टर द वोटिंग, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द टिकट, पार्टी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाती थी उस विधानसभा के अंदर। इस बार हमने उल्टा किया, हमने ओपन नहीं मंगाए कैंडिडेट्स, हमने कहा वॉलंटियर्स नाम सजेस्ट करेंगे, वॉलंटियर्स विल सजेस्ट द नेम्स, और जो शॉर्टलिस्ट वॉलंटियर्स बना के देते हैं उसके बाद हमारी पार्टी उसी में से एक नाम फाइनल करेगी। पार्टी विल नॉट ब्रिंग अ न्यू नेम। वॉलंटियर्स ने, किसी ने कहा ये ABC, किसी ने XYZ, किसी ने कोई और नाम दिया, उसके ऊपर वोटिंग नहीं करा रहे इस बार हम, बिकॉज वोटिंग में सारी पार्टी बिखर जाती है, तो नाम वॉलंटियर से ही आ रहे हैं। Okay, my final question to you, Mr. Kejriwal. Your message a day after Mr. Modi held a rally at the Ramlila ground. Your message to Mr. Modi tonight. मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा कि आप अपना CM कैंडिडेट जल्दी से डिक्लेयर कीजिए, ताकि जनता को पता हो कि कौन उनको लीड, कौन बीजेपी को लीड कर रहा है। अगर बीजेपी बाई चांस जीतती है तो हु इज़ द फेस, और उस CM कैंडिडेट को एक ओपन डिबेट के लिए भेजिए, जिसमें हम लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने के बजाय मुद्दों पे बात कर सकें। आई वुड लव टू हैव अ डिबेट विद द CM कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी, एंड जिसमें हम विमेन सेफ्टी पे बात करें, जिसमें हम शिक्षा पे बात करें, जिसमें दिल्ली के विजन के ऊपर बात करें। आई थिंक इट विल बी अ वेरी good distinct step for democracy. A televised debate, hopefully that will be conducted on NewsX. Of course, I will love to. Mr. Kejriwal, thank you for speaking to us on a night when the ground has been set for one of the most interesting battles of 2015. Thank you so much. Thank you.